So let us continue with this question. Question number 22. This is a 5-mark question, a very good geometry question which has a lot of claims to it. So let us start. So in a triangle ABC, let P and R be the foot of the perpendiculars from A to the external and external bisector of angle ABC. So angle ABC का एक internal bisector है and एक external bisector. So this is the internal, this is the external bisector, and P and R are the foot of the perpendiculars. Likewise, Q and S are the foot of the perpendiculars from A onto the internal and external bisectors of angle ACB. All right. So it is given that PQ is 7, QR is 6, and RS is 8. Find the value of the triangle of the area ABC. So how do we do this? So guys, see, this is the internal angle bisector. This is the internal angle bisector. This point is I, which is the end center of the triangle. So if I join AI, the things will become a little easy, but we need to prove a lot of claims. So the first claim is PR is parallel to BC. The second claim would be QS is parallel to BC, and the third claim is QR is parallel to BC. So these are the three claims that we are going to prove in a while. So पहले हम शुरू करते हैं. PR is parallel to BC. So PR is parallel to BC. How do I prove this? So can I claim that APBR is a rectangle? So APBR is a rectangle. कैसे? Is a rectangle. कैसे? So see guys, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्रीज है, इट इज गिवन. ये एंगल 90 डिग्रीज है, एंड ऑल्सो सिंस दिस इज इंटरनल एंड दिस इज एक्सटर्नल बाइसेक्टर, दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्रीज. सो एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर एंगल P, एंगल B, एंगल R तीनों 90 डिग्रीज एंड दैट मीन्स दिस इज अ रेक्टेंगल. This is a rectangle, and which means this angle is equal to this angle. This angle is equal to this angle because a rectangle is always cyclic. So if this angle is B by 2, which we know, because this is an internal angle bisector, this angle would be B by 2, and hence this would be also B by 2. This would be B by 2 as well. So since this angle is equal to this angle, that means PR is parallel to BC, and that means also similarly we can prove this claim that QS is parallel to BC as well. Now let us look at the third claim. The third claim is QR is parallel to BC. QR है ना जो बच्चे, that is parallel to BC. वो देखो किस तरीके से हम प्रूव करते हैं. So let us look at this angle. Let us look at this angle. Can I say QARI? QARI is cyclic because the two angles are given to be 90 degrees. QARI is cyclic, and this angle QAI is equal to this angle. And let us try to find the value of angle QAI. Now QAI will be QAC minus IAC. Will be angle QAC minus angle IAC. So this is purely angle chasing. So QAC देखो बच्चे, QAC. So this angle is 90 degrees. So QAC की अगर हम बात करें, this is C by 2. So QAC would be 90 minus C by 2 minus IAC. So IAC would be A by 2. This angle is A by 2. So this angle would be A by 2. So this is 90 minus A plus C upon 2. 90 minus A plus C upon 2. So this is actually B by 2. So ये एंगल B by 2 है, ये एंगल B by 2 है, and hence ये एंगल भी B by 2 है. और अगर ये एंगल B by 2 है and ये एंगल भी B by 2, that means QR is parallel to BC, and we've proved the third claim as well. We've proved the third claim as well. So ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था. ठीक है, तो अभी हमने 3 क्लेम्स प्रूव कर दिए हैं. इन तीनों क्लेम से हम एक चीज और फाइंड कर सकते हैं. वो ये फाइंड कर सकते हैं दैट P, Q, R and S are collinear. So अब क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया बच्चों. इन तीनों क्लेम्स है PR is parallel to BC, QS is parallel to BC, and QR is also parallel to BC. We prove that PQRS are collinear. So PQRS collinear है. Now can I say rectangle में PR and AB equal होंगे? So AB will be equal to PR, and PR का value, it is given that PQ is 7 and QR is 6. तो AB का value 13 हो गया. Likewise AC का वैल्यू, रेक्टेंगल है तो डायगोनल्स आर इक्वल, सो AC का वैल्यू QS के इक्वल होगा,
and QS will be QR plus RS, that means it will be 14. So AC का value बच्चों 14 होगा, AC का value 14 होगा. Now can I say M is the midpoint of AB? M is the midpoint of AB, and likewise N is midpoint of AC. N similarly AC का भी midpoint है, because हमें पता है कि diagonals bisect each other. तो अगर हम if I'm somehow able to find the value of Mn, I can say that Mn is equal to actually half of BC. So I'll be able to find the value of BC as well. अगर तीनों sides आ गई तो we can easily find the area of the triangle using Hero's formula. So let us concentrate on finding the value of Mn. So Mn का value देखते हैं किस तरीके से हम find करते हैं. So Mn, if I have to find Mn, let us concentrate on finding Mn. So Mn, how do I find Mn? So can I say Mn ka value will be Mq plus QR plus Rn. QR which is 6. So let us try to find MQ. अब MQ कैसे find करेंगे? MQ कैसे find करेंगे? We can say that PM is equal to MR is equal to half of PR. Half of PR means half of 13, which is 6.5. 6.5. So MR is 6.5 and QR is 6. So that means MQ is 0.5. MQ है 0.5. And similarly RN का value कितना हो जाएगा? RN का value similarly 1 हो जाएगा. So Rn का अगर 1 है तो Mn का value कितना आ जाएगा? Mn will be 6 plus 1 plus 0.5, that means 7.5, and hence BC will be equal to 15. So we know three sides. We know three sides of the triangle. So that's 13, 14 and 15. So the sides of the triangle are 13, 14 and 15. 13, 14 and 15. We can find the area of the triangle using Hero's formula. So small s, the semi-perimeter would be 28 plus 14. 42 upon 2 is 21. So triangle would be root of 21 into 21 minus 13, which is 8, into 21 minus 14, which is 7, into 21 minus 15, which is 6. So this should be the answer. If we have to simplify this, it simplifies to 7 into 7 into 3 into 3 into 16, 4 into 4. So we have 7 into 3 into 4, and it comes out to be 84. So 84 is the correct answer to this particular question. So 22 question, which was a 5-mark question, it was a very good question on geometry. The answer is 84, and I hope you've understood the solution. Let us move on to the next question. Question number 23. Question number 23 says the in circle I of scalene triangle ABC touches. So this is the in circle and this is the in center. So this touches BC. So if I name them A, B, C, this touches BC at D, CA at E and AB at F. Let RA be the radius of the circle inside triangle ABC, which is tangent to this particular circle and also tangent to the sides AB and AC. So likewise, this radius is RB and this radius is RC. We need to find the radius of the in circle of the triangle. तो बच्चों इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है जो हमने रेगुलर कोर्सेज में प्रूव किया हुआ है. एंड फॉर्मूला क्या है? इसका जो रेडियस है दैट इज रूट ऑफ RA RB प्लस रूट ऑफ RB RC प्लस रूट ऑफ RC RC. So अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, it will be 16 into 25 plus root of 25 into 36 plus root of 36 into 16. So ये आंसर क्या होगा बच्चों? 4 into 5 plus 5 into 6 plus 6 into 4. So that means 20 plus 30 plus 24. So आंसर कितना हो जाएगा इसका? 50 plus 24 is 74, and 74 was the correct answer to question number 23. So this was pretty straightforward. अगर ये चीज़ पहले से पढ़ी हुई है तो ये बहुत easy question था. इसका proof हालांकि बहुत लेंदी है जो कि अभी हम यहाँ पर नहीं कर रहे, but I'll take a separate session to prove this particular thing. All right. Now let us move on to the next question, which is question number 24. It will be taken by Chetan sir. ये क्वेश्चन कह रहे हैं लाइट सोर्स एट अ पॉइंट 0,16 इन द कोऑर्डिनेट प्लेन, है ना.
कास्ट लाइट इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। एक डिस्क है, बेसिकली एक सर्कल है जिसका रेडियस 2 है और सेंटर हमें दिया है 6,10, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पर एक शेडो फॉर्म कर रहा है एंड हमें लेंथ ऑफ द शेडो निकालनी है, एंड इफ लेंथ ऑफ द शेडो कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ m√n, तो हमें बेसिकली m+n निकालना है, राइट। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक ट्रिग्नोमेट्री से और एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा सा मुझे लेंदी लग रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से काफ़ी इजी बन रहा है, तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन, पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं, राइट, ठीक है। ये कह रहा था 0,16 पर आपका लाइट सोर्स है, राइट, एंड देयर इज अ सर्कल जिसका सेंटर है 6,10 एंड रेडियस इज 2, ठीक है। ये यहाँ से लाइट बीम्स जा रही हैं और ये कुछ यहाँ पर शेडो बनेगी एज यू कैन सी, ठीक है। हमें इस शेडो की लेंथ निकालनी है और ये शेडो हमें बेसिकली m√n की फॉर्म में लिखना है और m+n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं इस सर्कल पर 0,16 से ये पेयर ऑफ टेंजेंट है, और पेयर ऑफ टेंजेंट की कंबाइंड इक्वेशन, जो बच्चे 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिन्होंने पढ़ी हुई है उनको पता होगा, पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन होती है t² = s(s1), राइट, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। अब इस पेयर ऑफ टेंजेंट्स का हमें क्या चाहिए होगा, हमें इसका x इंटरसेप्ट चाहिए। तो इस इक्वेशन में t² = s(s1) में हम क्या करेंगे, हम y की वैल्यू को 0 डालेंगे और डिफरेंस ऑफ द रूट्स जो कि √d/mod होता है उसको हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले अपन सर्कल की इक्वेशन लिखते हैं। सर्कल का रेडियस हमें गिवन था 2, तो सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी सिंपली x - 6² प्लस y - 10² है ना, -4 = 0। ये हमारी सर्कल की इक्वेशन है। अब हम सीधा t² = s(s1) लिखते हैं, ठीक है। तो t क्या होता है, t हम 0,16 के रिस्पेक्ट में लिखेंगे और वो कुछ रिप्लेसमेंट्स के बाद आता था, तो t बन जाएगा x - 6 इंटू x1 - 6 विच इज 0 - 6, so that will be -6 प्लस y - 10 इंटू 16 - 10 that will be 6 है ना, -4, ये हमारा हो गया t² = s तो हमारी यही टर्म है ना, which is nothing but x - 6² plus y - 10² -4, this is our s, एंड हम अब 0,16 के हिसाब से s1 कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपली 0,16 इसमें डाल देते हैं, राइट। तो ये बन जाएगा 36 - 6² plus 16 - 10 which is again 36 -4, राइट, एंड विच इज इनफैक्ट ये वैल्यू कितनी आ जाती है 68, ठीक है। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई t² = s(s1) है ना। अब हमें इस कंबाइंड इक्वेशन में x इंटरसेप्ट चाहिए, तो हम y की वैल्यू को 0 डाल देते हैं, ठीक है। और इनफैक्ट x में हमें x1 और x2 दो रूट्स आएंगे, हमें उनका डिफरेंस चाहिए, तो x - 6 को अगर हम t मान लेते हैं तो t की टर्म में क्वाड्रेटिक आएगी, डिफरेंस सेम रहेगा बिकॉज दोनों रूट्स को हमने 6 से छोटा कर दिया, तो डिफरेंस विल रिमेन सेम, है ना। तो हम क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करते हैं, y की वैल्यू इसमें 0 डालते हैं, x - 6 को t पुट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बन जाएगा -6t, राइट, प्लस ये तुम्हारा y की वैल्यू 0 है तो -64, राइट, होल स्क्वायर्ड, दैट विल बी इक्वल टू x - 6 इज योर t, तो t² माइनस प्लस 100 - 4 विच इज योर 96 टाइम्स कितना था वो 68, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, राइट। यहाँ से भी एज यू कैन सी माइनस कॉमन ले लेते हैं और एक 2 कॉमन ले लेते हैं, तो दैट कम्स आउट टू बी 3t + 32 होल स्क्वायर्ड, दैट विल बी इक्वल टू 4 कैंसल आउट हो जाएगा, 2 होल स्क्वायर बाहर आएगा 4, है ना, तो दैट विल बी सिंपली t² + 96 इंटू 17, राइट। अब ये क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक को कंप्लीट कर लो आप, तो ये बन जाता है 17 - 9, तो दैट विल बी 8t², और यहाँ पर आ जाएगा -2 इंटू 96t, राइट, प्लस 96 इंटू 17 माइनस योर 32 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है t की टर्म्स में, ठीक है, और हमें इसका डिफरेंस ऑफ रूट्स चाहिए। देखो इस क्वाड्रेटिक में भी ना आप पहले 8 फैक्टर को कैंसिल आउट कर सकते हो। डिफरेंस ऑफ रूट्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है, डिफरेंस ऑफ रूट्स की वैल्यू होती है √d/mod, जिनको ये फॉर्मूला नहीं आता, ठीक है,
व्हाट दे कैन डू, आप सिंपली दोनों रूट्स को निकाल सकते हो, दोनों रूट्स की सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, राइट। तो रूट डी बाई मॉड है, जब इस सिंपल से क्वाड्रेटिक में हम निकालते हैं तो दैट कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 272, ठीक है। ये डिफरेंस ऑफ द रूट्स आता है, एंड अंडर रूट ऑफ 272 विच कैन बी फर्दर रिटन एज 4 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 17, राइट। 272 इज 16 इंटू 17, राइट। तो 4 बाहर आ जाएगा, दिस इज 4 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 17। तो ये हमें कंपेयर करना था किससे, m रूट n से, है ना। तो यहाँ से m की वैल्यू कम्स आउट टू बी 4 एंड n कम्स आउट टू बी 17, तो आंसर इज m प्लस n विच इज 21, ठीक है। तो एज यू कैन सी ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से थोड़ा सा इजी पड़ता है, बट यस उसके लिए आपको टी स्क्वायर इक्वल टू SS1 का कंसेप्ट पता होना चाहिए। मोस्ट लाइकली जो बच्चे 11th में होते हैं या 12th में होंगे उनको डेफिनेटली ये कंसेप्ट आता होगा। ट्रिग्नोमेट्री से भी सेम क्वेश्चन को कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंथी पड़ता है, राइट। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लोहित सर लेंगे। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन आई वुड से कि काफ़ी इजी है, ठीक है, क्योंकि बहुत इजी टर्म्स में दिया हुआ है। फॉर पॉजिटिव इंटीजर n, ये जो एक्सप्रेशन है इट डिनोट्स द परफेक्ट स्क्वायर इंटीजर क्लोजेस्ट टू n। मतलब अगर एग्जांपल दिया 74, एक्चुअली अगर आप देखोगे 74 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में आता है, बट किसके क्लोज है, 64 से 10 का डिफरेंस है, बट 81 से डिफरेंस उसका 7 का ही है, राइट। तो 81 लिखोगे आप उसका, तो क्लोजेस्ट होल स्क्वायर की वैल्यू में आपको लिखना है। सो अब इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज ही डालनी है प्रैक्टिकली, कुछ और है ही नहीं, परफेक्ट स्क्वायर समझने हमें। सो 91, उसके आसपास स्क्वायर कौन सा है, 81 एंड 100, सो क्लोजेस्ट इज 100, उसका डिफरेंस 9 है, सो 100 इंटू 120, एज यू नो 121 इमीडिएटली होल स्क्वायर है 11 का, सो 121 इंटू 143 के अगेन इमीडिएटली स्क्वायर है 144 इंटू एंड 180 पे आके कई बार बच्चे जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, दैट 196 लिख दिया है ना। सो 169 एंड 196, तो 13 और 14 के स्क्वायर के बीच में ये, सो 169 से उसका डिफरेंस है 11 एंड 196 से 16 का है, सो एक्चुअली द नंबर वुड बी 169, ठीक है, इनटू ये एक्सप्रेशन आ गया n का इज इक्वल टू, ये वैल्यूज हम लिख देते हैं 91 120 143 इंटू 180 टाइम्स n, ठीक है। तो अभी कैंसिलेशन टर्म्स की करते हैं। सो ये दो जीरोज इन दो जीरो से कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। सो दिस इज 11 फोर्थ पे कैंसिल करते हैं, दिस इज 11 पे कैंसिल होगा तो 13 विल कैंसिल 169, ये 13 पे कैंसिल हो गया, और ये 13 91 को 7 पे कैंसिल कर देगा, एंड देन 12 का स्क्वायर है तो 12 एंड ये 12 कैंसिल कर देगा, सो 6 विल कैंसिल 12 फॉर 2 और 6 इसको 3 पे। सो फाइनली आपके पास बचा 11 इंटू 2 इंटू n इज इक्वल टू 7 इंटू 3 21 इंटू n। तो फाइनली एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। सो एज वी नो ये नंबर क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। हमें क्या फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। सिंस 21 एंड 22 क्या है, को प्राइम है, सो ये n की वैल्यू कम से कम होल स्क्वायर चाहिए। यहाँ पे 21 है वो 3 इंटू 7 है, ठीक है। सो 21 के कोई को प्राइम है तो n की वैल्यू हमें क्या रखनी पड़ेगी, सो दैट इट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 22 का मल्टीपल होना चाहिए सबसे पहले, सो दैट 22 कैंसिल्स। अब होल स्क्वायर होना चाहिए तो 21 ऑलरेडी है, तो उससे मिनिमम रखोगे तो 21 ही रखना पड़ेगा आपको, है ना। सो n की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, 22 इंटू 21, सो दैट इट बिकम्स 21 होल स्क्वायर, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 22 इंटू 21 वुड बी 462। सो आपके पास n की वैल्यू आ रही है 462, ऑल्दो आपको चेक भी करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये वैल्यू डालते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 21 स्क्वायर आ रही है, दैट इज 441। तो 441 21 का स्क्वायर है, 22 का स्क्वायर 484 है, तो ऑब्वियसली 441 से इसका डिफरेंस 21 है, दूसरे वाले से 22 है, सो इसका क्लोजेस्ट इंटीजर 441 आएगा, दैट इज 21 स्क्वायर। तो अपना क्रॉस चेक हो रहा है कि आंसर सही होएगा। देन फाइनल आंसर क्या होगा, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डिजिट्स ऑफ n, सो दैट वुड बी 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, which will be 16 36 प्लस 4, सो ये आ जाएगा आपके पास 56, सो दैट विल बी योर 2 डिजिट आंसर 56, ठीक है। तो एज सच इसमें कुछ रिक्वायर नहीं है, जस्ट आपको समझना है कि होल स्क्वायर्स कैसे एक्ट कर रहे हैं
और वैल्यूज पुट करनी है आपको, जस्ट ये समझना है एक नई चीज, ये जो उसने जो डिफाइन की वो समझना है और उसका जस्ट एप्लीकेशन करना है।